Today we'll start what is electronegativity, and this topic I have already explained in the periodic table chapter. Now, what is electronegativity? In a covalent bond between two different elements, for example A and B, there are two different atoms. So the electron density is not shared equally. So if the two atoms are different, it means जो इनके बीच में sharing of electrons, they are not equally shared. If these shared pair of electrons are not equally shared between A atom and B atom, then student क्या produce होगी? Electronegativity. So in a covalent bond between two different elements, the electron density is not shared equally. This is because why it is not shared equally? Because different elements have different abilities to attract the bonding electron pair. मैंने अभी कहा A and B के बीच में क्या बना हुआ है स्टूडेंट? आपका covalent bond बना हुआ है. Covalent bond means there is sharing of electrons. So if the attracting tendency of A and B is different, means ability to attract the shared pair of electron is different, then the shared pair of electron is attracted towards more electronegative element. For example, B is more electronegative than A. Then these shared pair of electrons are attracted towards the more electronegative element. ठीक है student? So this is because different elements have different abilities to attract the bonding electron pair. So दो एटम्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, इन दोनों की एबिलिटी क्या है? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की डिफरेंट. सो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्टिंग द ability to attract the bonding electron pair, means tendency to attract the shared pair of electron toward itself is termed as electronegativity. Now electronegativity values for some common elements, values given here are measured in Pauling scale. ठीक है स्टूडेंट? कौन सी स्केल है आपकी? Pauling scale. ये आपकी पीरियोडिक टेबल में भी स्टूडेंट आपको मेंशन होगी. आप अभी अपनी बुक से पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको लिखी हुई मिल जाएंगी. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ सम important elements. ठीक है स्टूडेंट? So electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule. So electronegativity and atomic radius. So electronegativity of an element depends on a combination of two factors. कौन से factors स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक रेडियस. As radius of an atom increases, the bonding pair of electrons become further from the nucleus. ठीक है स्टूडेंट? जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता जाएगा तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो न्यूक्लियस से क्या जाते जाएंगे? दूर जाते जाएंगे. The bonding pair of electrons become further from the nucleus. They are therefore less attracted to the positive charge of the nucleus. It means if the radius of the atom increases, bonding pair of electrons, they go further from the nucleus and they are less attracted to the positive charge of the nucleus, resulting in a lower electronegativity. So as the radius of an atom increases, electronegativity value of an element decreases, and vice versa. For example, this is a small sized atom and this is a large sized atom. So small size atom have higher electronegativity and large size atom have lower electronegativity because these bonding pair of electrons are farther from the nucleus and they are less attracted towards the nucleus. So that's why they are lower electronegativity. ठीक है स्टूडेंट? And if the atomic radii is small, the bonding pair of electron is attracted towards the nucleus. It means the element have higher electronegativity. So more the atomic radius, lower the electronegativity and vice versa. So second factor is number of unshielded protons. So shielding effect. So greater the number of protons in a nucleus, the greater the attraction to the electrons in a covalent bond and higher electronegativity. ठीक है स्टूडेंट? So more the number of protons. For example, this is a beryllium having atomic number 4, means number of protons कितने हैं न्यूक्लियस में? 4. And this is the magnesium, atomic number 12. How many protons in magnesium? 12. So more the nuclear charge, means more the atomic number, means more the number of protons, then more the attraction to the valence electrons or bonding pair of electrons. If there is more attraction, it means more the electronegativity. So greater nuclear charge increases electronegativity. So यहाँ पे अब magnesium का nuclear charge क्या है? More. If the nuclear charge is more, it means the attraction between the nucleus
and bonding pair of electrons or valence electrons is more, if there is a more attraction, then more electronegativity. So greater nuclear charge increases electronegativity. So because greater nuclear charge means greater attraction between the nucleus and bonding electrons or valence electrons. If there is a more attraction between the nucleus and bonding or valence electrons, then there is a more electronegativity. So smaller the size, more the electronegativity, more the nuclear charge, more the electronegativity. So however, full energy levels of electrons shield the electrons in the bond from the increased attraction of the greater nuclear charge, thus reducing electronegativity. अब स्टूडेंट, मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो हो गया स्टूडेंट। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या है? शील्डिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जाएं, अगर आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे स्टूडेंट? शील्ड करेंगे। शील्ड करेंगे मतलब जो इनकी अट्रैक्शन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करेंगे, किसको शील्ड करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ या आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके बनते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। सो इफ द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स are more, it means more the shielding effect. If there is a more the shielding effect, it means there is a tendency to attract the valence electron or bonding pair of electrons is decreases and electronegativity decreases. ठीक है स्टूडेंट? So there are two main factors, greater nuclear charge, more electronegativity, but if there is a more shielding effect then electronegativity decreases. स्टूडेंट ध्यान देखना है, आपने ध्यान से रखना है क्योंकि हमें दोनों फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट? सो स्मॉलर द एटॉमिक रेडियाई मोर द electronegativity, greater the nuclear charge more the electronegativity, but if more the shielding effect then there is a reducing electronegativity. ठीक है स्टूडेंट? सो क्या आ गया? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। स्टूडेंट अक्रॉस ए पीरियड आपका साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है, और हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इफ अगर आपका साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज across a period because atomic radii decreases. The charge on the nucleus also increases without significant extra shielding. स्टूडेंट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, across a period shielding इफेक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। इट मीन्स आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और the charge on the nucleus increases without significant extra shielding. Shielding effect नहीं प्रोड्यूस हो रहा across a period because inner shell electrons क्या रहेंगे? Remain the same across a period. So new electrons do not contribute much to shielding because they are added to the same principal energy level across the period. Across the period में electrons कहाँ पे ऐड होते हैं? Same principal level में। If the electrons are added to the same principal level across a period, it means number of shielding electrons mean number of electrons क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। It means आपका जो सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहा है? चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑल द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है स्टूडेंट? आपका चार्ज भी बढ़ रहा है लेकिन शील्डिंग भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो दो इफेक्ट क्या होंगे आपके फेवर करके? एटॉमिक रेडियस बढ़ गया क्योंकि न्यू शेल आपकी बढ़ रही है बिकॉज जो न्यू इलेक्ट्रॉन है एंटर्स इनटू द न्यू शेल। ठीक है स्टूडेंट? सो देयर इज वन फैक्टर, इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द न्यू शेल। नाउ there is a increased shielding effect because as we move down the group number of inner shell electrons increases, it means shielding effect increases. So two factors favors the decrease of electronegativity and increase of charge. क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। सो क्या कर रहा है? सो दो फैक्टर आपके फेवर में है, किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने को। एक आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। जो दो फैक्टर फेवर में अल्टीमेटली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज करेगी। So atomic radius increases, all the charge on the nucleus increases, but shielding also increases significantly. This is because electrons added down the group fill new principal energy levels. So that's why ultimately result क्या निकला? Electronegativity decreases down the group. So next is a polar and non-polar bonds. ठीक है स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट ये अभी चलती रहेगी आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट? अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये आपके साथ चलता रहेगा और ये पूरी इनऑर्गेनिक और पूरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। फिलहाल हम अभी क्या पढ़ेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड्स हम पढ़ चुके हैं, अब कह रहा है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स
एंड सेकेंड वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स मीन जो आपका इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और ए के बीच में दिस इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग। ए भी उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना ये वाला ए अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड मीन्स अनइक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स आपके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए हैं, किसी एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा, वहाँ पे क्या हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। सो जो आपके बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल here is also two persons, here is also two persons, they pull the rope। so now यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल शेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल शेयर। और ये वाली एग्जांपल किसकी है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है सुन, क्योंकि जो आपका ये रॉप है ये डिस्प्लेस कहीं किसी भी तरफ नहीं हो रही, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे भी उतनी फोर्स के साथ ये रोप को खींचा जा रहा है, यहाँ भी उतनी फोर्स के साथ इस रोप को खींचा जा रहा है। सो देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉप, सो दैट्स व्हाई दिस इज द जस्ट एक आपकी वो एग्जांपल है किसको शो करने की, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को शो करने की। अगर आपके ये वाले एटम्स और ये वाले एटम सिमिलर होंगे तो ये आपके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी तरफ डिस्प्लेस नहीं होंगे। So non-polar bonds, a non-polar covalent bond is an equal sharing of electrons between two atoms, ठीक है स्टूडेंट। So non-polar covalent bonds में जो sharing of electrons है between two atoms वो क्या स्टूडेंट, equal, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपके ये एंड ये इस पर्सन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, सेम। इट मीन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला शेयर हो रहा है स्टूडेंट, ये वाला पर्सन बेचारे इन दो क्वींस के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ये किसी की तरफ भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा। सो दिस इज अ जस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बेचारा बीच में फंस गया है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्वीन कह रही है ये मेरा है, ये वाली क्वीन कह रही है मेरा, और ये वाला पर्सन कहाँ बीच में फंस गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो non-polar bonds, if the electronegativity of both the atoms in a covalent bond is identical, for example A atom और A atom दोनों क्या है स्टूडेंट आपके सिमिलर एटम्स, इट मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिकल होगी तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड विल बी इक्वली अट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि शेयरिंग तो होगी, जब बॉन्ड बनेगा तो शेयरिंग तो होगी। अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट वो क्या है, इक्वली अट्रैक्टेड। ए भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतनी स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट कर रहा है जितनी स्ट्रेंथ के साथ ये वाला एटम ए अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगी, सो देयर इज ए इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड विल बी इक्वली अट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम। So the results in a symmetrical distribution of electron density around the two atoms। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ना किसी एक एटम के पास ज़्यादा होगी ना किसी दूसरे एटम के पास कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द टू एटम्स वो क्या होगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट। क्या होगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट मीन्स ए के पास भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उतनी स्ट्रेंथ है जितनी ये वाले एटम ए के पास, ठीक है स्टूडेंट। सो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या आपकी क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड बोथ एटम्स, ये आपका एक एटम ये रहा और दूसरा एटम ये रहा, बोथ एटम्स आर इक्वली गुड एट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोनों की जो अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को, मीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या सेम है। देन दैट जो बॉन्ड बनेगा आपका कौन सा बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड। So bonding in elements, for example H2, O2, Cl2, ये always क्या है, non polar, because the electronegativity of the atoms in each molecule is same। for example ये हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, दोनों का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑलवेज जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस हाइड्रोजन की भी उतनी स्ट्रेंथ है इसको ट्रैक करने की जितनी इस हाइड्रोजन की है। सो दैट्स वाई अब ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो गया, जितना इसके पास शेयर होना था उतना इस हाइड्रोजन के पास भी शेयर हो गया, और क्या हो गया, बोथ एटम्स आर इक्वली गुड एट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आपकी सिमेट्रिकल अराउंड द टू एटम्स। एंड द बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बना आपका, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो बॉन्डिंग इन एलिमेंट्स, जो आपके सिमिलर एटम्स के आपके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एटसेट्रा, इज ऑलवेज नॉन पोलर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल इज सेम। फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे है, सेंटर पे। और फॉर एग्जांपल ये आपका क्लोरीन है,
और ये क्या आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे है, सेंटर पे। सो बोथ फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दैट इज बाय नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है आपका, नॉन पोलर। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है आपका, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज द अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ द atoms is same and the electron shared pair of electron always remains at the center between the two atoms in a molecule. So next, a non-polar covalent bond occurs between two non-metals, between hydrogen hydrogen, between chlorine chlorine, between fluorine fluorine, between oxygen oxygen, between nitrogen nitrogen. These are the examples of non-polar covalent bond because shared pair of electrons is always at the center between the two atoms in a molecule and they are not attracted towards any atom. So non-polar covalent bond occurs between non-metals, is an equal or almost equal, equal भी हो सकता है और almost equal sharing of electron, जो आपकी sharing of electrons है वो क्या है, almost equal और equal and has almost no electronegativity difference. So अगर आपका electronegativity difference between two atoms कितना होना चाहिए, 0 to 0.4, 0 to 0.4, तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे तो सुनो ना आपके सिमिलर एटम्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, तो 3 - 3 क्या आ गया, 0, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आ गया, 3 - 3 0, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 to 0.4 है तो भी आपका जो बॉन्ड है वो कौन सा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड ब्रोमीन के बीच में इस आपकी क्लोरीन की है 3, ब्रोमीन की है 2.8, कितना डिफरेंस आ गया, 0.2, और ये हमारा 0 to 0.4 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन, फॉर एग्जांपल आपका सिलिकिक एसिड है SiH4, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका हाइड्रोजन का है 2.1, सिलिकॉन का 1.8, डिफरेंस कितना आ गया, 0.3, और 0 to 0.4 के बीच में है तो बॉन्ड जो बनेगा हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन के बीच में कौन सा बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 0 to 0.4, the bond formed by covalent bond is non-polar covalent bond, it means the shared pair of electrons हैं, shared pair of electron है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और ब्रोमीन, वो ऑलमोस्ट कहाँ पे हैं, एट द सेंटर बिटवीन द टू एटम्स इन ए molecule, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स इज 0 to 0.4। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट चलते जाना है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने पीरियोडिक टेबल में कहा था कि आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट चैप्टर, तो ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ये आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड आपको हर लेक्चर में आपको सुनने में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। सो नेक्स्ट आ गए स्टूडेंट आपके पोलर बॉन्ड्स। A polar covalent bond is unequal sharing of electrons between two atoms। स्टूडेंट जब आपके क्या हो, unequal sharing of electrons, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, अब जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, आपका क्लोरीन की तरफ, बिकॉज क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। सो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव मींस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गई, जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज कर गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस मींस स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। कंप्लीट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, ये क्या आपके डेल्टा पॉजिटिव मींस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आपका स्मॉल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज क्लोरीन एटम। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, अब जो ये आपका बॉन्ड बना हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। So in a polar covalent bond, one atom is typically has a negative charge, partial charge, another atom has a partial positive charge। ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला ये HBr है स्टूडेंट, आपका हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है। सो क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन से ब्रोमीन की तरफ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पहले हाइड्रोजन और ब्रोमीन इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलमोस्ट क्या थे, सेम थे, लेकिन जैसे ये इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो ये जो आपका चार्ज था ये कहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गया, ब्रोमीन की तरफ। कहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गया, ब्रोमीन की तरफ। ये देखिए ब्रोमीन की तरफ जो चार्ज डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है स्टूडेंट आपका ज़्यादा,
और हाइड्रोजन की तरफ जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम। ये आपकी हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये आपकी ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आपका HBr है। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किस तरफ शिफ्ट हो गया आपका, ब्रोमीन की तरफ। ब्रोमीन की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और ये आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, कम। बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बिकॉज ब्रोमीन इज ए हेलोजन एंड हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। ब्रोमीन इज also non-metal but bromine is a halogen and halogens have high value of electronegativity. For example वही केस आ गया स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 पीपल रोप को पुल कर रहे हैं और यहाँ पे कितने हैं, 2 से ज़्यादा पुल कर रहे हैं। इट मीन्स जो आपकी रोप है कहाँ पे शिफ्ट हो गई, इस तरफ। इट मीन जो आपका चार्ज था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था स्टूडेंट, कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ब्रोमीन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक है स्टूडेंट। एंड देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ partial charges, positive and negative charges. So there is a development of positive and negative charges over the atoms in a molecule. So types of bond, ionic bond, covalent bond, a partial polar covalent bond. So ionic bond में स्टूडेंट क्या आपका, जो आपका जो चार्ज था वो क्या था, कंप्लीटली पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है। पॉजिटिव में कुछ नहीं रहता, ये आपका चार्ज है स्टूडेंट। ये जो आपके 2 क्रॉसेज हैं ये क्या हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आयनिक कंपाउंड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके अनायन की तरफ, और कैटायन की तरफ कंप्लीटली एम्प्टी हो जाते हैं। और कोवलेंट में क्या होता है स्टूडेंट, आपके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, सेंटर में। और पोलर कोवलेंट में क्या होता है, जो आपके ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। आयनिक में ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव कंप्लीट ट्रांसफर हो गए। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ये सेंटर में रहते हैं, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ये किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरफ जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट HF की एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ए कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट अब ये आपकी थ्योरी आ गई जो आपने नोट डाउन करनी है। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या आ गया, सॉरी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या आ गया, ए कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली। जब आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होंगे, इक्वली शेयर्ड होंगे बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वाइल ए कोवलेंट बॉन्ड, while a bond in which electrons are means covalent bond, while a covalent bond in which electrons are shared unequally, अब क्या हो रहा है, shared unequally, but the bonded atoms acquire a partial positive charge and the negative charge is called a polar bond। अगर आपके bonded atoms के ऊपर कौन से चार्जेस आ जाएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आपका जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कह रहे हैं कहाँ पे पॉजिटिव आएगा और कहाँ पे नेगेटिव आएगा। द एटम हैविंग, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हायर, ड्रॉज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, रिजल्टिंग इन कौन सा चार्ज आ गया, देयर इज ए पार्शियल चार्ज सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल HF मॉलिक्यूल है, कंटेन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन हैज ग्रेटर अट्रैक्शन। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या स्टूडेंट आपकी, मोर। फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन स्टूडेंट मैं फिर जहाँ रुक गया हूँ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट, अगर आपसे पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो किसकी है वो, फ्लोरीन की। सो नाउ फ्लोरीन हैज ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स और हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कहाँ पे चलेगा वो, नियरर टू द फ्लोरीन एटम देन हाइड्रोजन एटम। द हाइड्रोजन एंड ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड फ्लोरीन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, एंड दी इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, दिस इज कॉल्ड ए बॉन्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड ए bond length, d is the bond length. So there is a partial positive charge and in the fluorine there is a partial negative charge. So polar covalent bond occurs between non-metal atoms is an unequal sharing of electrons. क्या होना चाहिए, अब सुनिए, आपके हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों के आपके
नॉन मेटल्स, दोनों क्या आपके नॉन मेटल्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट अगर आपका मेटल और नॉन मेटल होगा तो स्टूडेंट वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या है, नॉन मेटल एटम्स, और नॉन पोलर में भी क्या था, नॉन मेटल एटम्स। सो पोलर में क्या था, सॉरी नॉन पोलर में क्या था, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड पोलर में क्या है आपकी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैज ए मॉडरेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब क्या होना चाहिए दोनों एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट आपका, 0.5 to 1.7। अब लेस देन 0.5 क्या था आपका, नॉन पोलर बॉन्ड। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स 0.5 to 1.7 आ जाए तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन की है 3.5, क्लोरीन की है 3, डिफरेंस कितना आ गया 0.5, तो कौन सा बॉन्ड बन गया आपका ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच में, पोलर। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड कार्बन, क्लोरीन की है आपकी 3, कार्बन की है 2.5, डिफरेंस कितना आ गया 0.5, कौन सा बॉन्ड बन गया कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में, पोलर। फॉर एग्जांपल आपका CCl4 है तो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बना वो कौन सा बना स्टूडेंट आपका, पोलर कोवलेंट। कौन सा बना, पोलर कोवलेंट, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिटवीन कितना है, कार्बन एंड क्लोरीन 0.5। फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन का है 3.5, सल्फर का है 2.5, कितना आ गया 1, और कौन सा बॉन्ड बना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 to 1.7 आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ऑक्सीजन एंड सल्फर केस हो गया SO2। ठीक है स्टूडेंट, SO2 में जो बॉन्ड बनेगा सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होंगी। आपने सिर्फ क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ टू एटम्स। ठीक है, जिनके बीच में क्या बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो डिफरेंस आपका 0.5 से मतलब 0.4 से कम है तो वो नॉन पोलर है, अगर 0.5 to 1.7 है तो पोलर है, और अगर आपका 1.7 से बढ़ जाता है स्टूडेंट आपका तो 50% आयनिक है, और 2 से अगर बढ़ जाता है डिफरेंस तो आपका आयनिक है। वो हम अभी देखते हैं। पहले आप 0.5 आपने 0.4 तक देख लिया, 0.5 to 1.7 तक देख लिया। नाउ पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल अब एटम्स क्या आ गए आपके डिफरेंट, लेकिन हैं क्या यहाँ पे, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी क्या आपका नॉन मेटल। HBr, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी स्टूडेंट आपकी, अनइक्वल। क्या होगी, अनइक्वल। द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स नियर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब स्टूडेंट जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन की है 2.1, ब्रोमीन की है 2.8, डिफरेंस कितना आ गया 0.7। इसका मतलब जो बॉन्ड बना हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में कौन सा बना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो 0.7 है, कौन सा बॉन्ड बना आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एंड दिस वन इज HBr, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। और जो आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टूडेंट कहाँ पे इंक्रीज कर गया, ब्रोमीन की तरफ, और हाइड्रोजन की तरफ क्या हो गया है, कम। So electron cloud is shifted towards more electronegative atom. So bromine that's why acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. And this is a unequal sharing of electrons. स्टूडेंट आपकी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या अनइक्वल है। ब्रोमीन की तरफ देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या स्टूडेंट आपका ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है कम। मीन शेप भी क्या होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, डिस्टोर्ट हो गई है। अगर तो शेप आपकी सिमेट्रिकल होती, आपकी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप सेम होती तो वो कौन सा होता, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप क्या हो गई है, डिस्टोर्ट हो गई है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ब्रोमीन एटम, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे कम हो गया, हाइड्रोजन की तरफ। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज bromine atom, and electron cloud between the HBr molecule is distorted. So वो कौन सा बॉन्ड बना आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। कह रहा व्हाई डू पोलर बॉन्ड्स अकर, कह रहा व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स ए पोलर बॉन्ड में रिजल्ट। सो कोवलेंट बॉन्ड अगर आपके दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा तो पोलर बॉन्ड बन सकता है में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आपका 0.4 से कम है तो वो बॉन्ड आपका नॉन पोलर ही रहेगा, चाहे आपके एटम्स के यहाँ डिफरेंट हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस भी आपने देखना है। अगर 0.4 से कम है तो वो नॉन पोलर है, 0.5 to 1.7 है तो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड है।
So if the two atoms in a covalent bond have different electronegativities, they will have to different abilities to attract the electrons in the bond. ठीक है स्टूडेंट. अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, बिकॉज क्लोरीन इज ए हेलोजन. सो जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ. देखिए ध्यान से स्टूडेंट, पहले तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये शेयर हो गए. ठीक है स्टूडेंट. अब आपकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 एंड क्लोरीन की है 3.2. ठीक है स्टूडेंट. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफरेंस है. तो डिफरेंस होने की वजह से कितना है, 3.2 माइनस 2.2 कितना आ गया, 1 मीन जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. सो एन अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन की तरफ आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो गया, बढ़ गया है. मीन जो आपकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गई है, एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल नहीं रही. सिमेट्रिकल का मतलब है कि हाइड्रोजन की तरफ सेम रहती और क्लोरीन की तरफ भी सेम रहती, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ ज़्यादा हो गई है, क्लोरीन की तरफ, और हाइड्रोजन की तरफ क्या हो गई है, कम. कह रहा है एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट्स बिकॉज वन एटम क्लोरीन attracts the electron more towards strongly. This creates an imbalance in the charges in the bond called a dipole. अब यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, डाइपोल. फिर से ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट. एन asymmetrical distribution of electron density. अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, asymmetrical मीन्स सिमेट्रिकल नहीं है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट्स क्यों आया, बिकॉज वन एटम क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा, सो दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली. सो क्लोरीन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट मोर स्ट्रांगली. सो दिस क्रिएट्स एन, अब क्या क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस ऑफ द चार्जेस. क्या क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस ऑफ द चार्जेस मीन्स हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है और क्लोरीन की तरफ बढ़ गई है. सो ड्यू टू दिस क्या क्रिएट हो गया था, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. और क्या क्रिएट हो जाता है, डाईपोल. डाई मीन्स दो, पोल्स मीन्स इलेक्ट्रिकल पोल्स डेवलप हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो द एटम सराउंडेड बाय द ग्रेटर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन हैज ए स्लाइट नेगेटिव चार्ज. देखिए क्लोरीन की तरफ क्या आ गया स्टूडेंट आपका, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की तरफ क्या आ गया, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. डेल्टा मीन्स स्लाइट, डेल्टा मीन्स स्लाइट. So hydrogen acquires partial positive charge and chlorine acquires partial negative charge. and जो आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, कौन सा बना स्टूडेंट आपका, पोलर बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आर्टिकल आ गया आपका डाइपोल. ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स.